Hello everyone and a very good afternoon to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing the revision of the last 1 week of the important articles that came in the Hindu newspaper. Okay, so I hope you are aware, हर Sunday को, every Sunday at 3 p.m. we discuss this weekly recap जिसमें लास्ट 1 वीक में जितने भी न्यूज़पेपर आए आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कराते राइट सो इफ आई एम ऑडिबल and visible, please write in the comment section, yes sir, you're audible. Is my voice reaching? Is the slide visible? Everything is fine? एक बार comment section में लिख दो yes, so that we can start our session. Yes, good evening Nisha. Am I audible? आवाज आ रही है? Slide is visible? Okay, so let's start with yes Monday's newspaper. तो उसमें एक yes fine, okay, yes, thank you Kushagra. Now let's start with okay, yes fine, okay, Safi Nomani Nisha, good, thank you. So let's start with this question. Actually this is how they're asking question. या कहीं पे यहाँ पर x y ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो मैंने उसको डैश लिख दिया है and I have not given the option because I am expecting you that you should answer it even without option. This was in the news last 1 week में कि Mr. Arvind Kejriwal resigned from being the chief minister of Delhi and now we are having a new chief minister. है ना, तो यही बात हो रही है ना. आप लीडर डैश टुक ओथ ऑन सैटरडे यानी यस्टरडे. पूरे लास्ट 1 वीक में ये न्यूज में था कि resignation of chief minister Arvind Kejriwal and the new chief minister as Delhi's dash woman chief minister. ठीक है, so आप लीडर, her name is Atishi. Okay, yes, Safi Nomani, Kushagra Pandey, right, huh? So she took oath on Saturday, that is 21st September 2024 as Delhi's third woman chief minister and became the youngest of all the three to top. All the three यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये third होंगी, है ना, to top the office in the national capital. तो बाकी दो के मुकाबले she is actually the youngest, है ना. She also became the 17th woman to hold the post of CM in independent India. यानी अभी तक टोटल 17 वोमेन ने सीएम की पोस्ट होल्ड की है पूरे इंडिया में, ठीक है, ओवरऑल, और थर्ड दिल्ली के केस में, ठीक है, सो थर्ड वोमेन. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. आप लीडर आतिशी टुक द ओथ एंड ऑल, ठीक है. नाउ देयर इज अ होमवर्क. होमवर्क क्या भी बता दो कि विच वर द अदर टू. तो फर्स्ट कौन थी फीमेल और सेकंड फीमेल कौन थी. सो थर्ड तो भी डिस्कस कर ली. यस, फर्स्ट इज Miss Sushma Swaraj, है ना, and she was a very senior leader from BJP, right? Then who was the second woman to be the chief minister of Delhi? Second woman, and I think she was for a very long period as far as I could remember. Her name was actually Sheila Dikshit. Okay, and she was from Indian National Congress. ठीक है. Yes, Safi Nomani, very good. हाँ, Sushma Swaraj and Sheila Dikshit, right? Okay, let's move on to the beginning of the article. तो Monday की न्यूज़पेपर में we had discussed about it. ये सब बात हुई थी केजरीवाल to quit seek early polls, ठीक है. तो we have already discussed कि केजरीवाल resigned from being the chief minister and a new chief minister was appointed and all, ठीक है. अच्छा, एक दो और क्वेश्चन है अगर मैं पूछूं तो, चूंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है. हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, देन व्हाट शुड बी द आंसर. मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं. लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Who appoints the chief minister of Delhi? कौन अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को? This you should be knowing it. This is very, very important actually.
और ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And now please tell me which article, there is a separate article which talks about in the constitution, which specifically talks about the governance in Delhi. What is that article? कुछ लोगों ने बी आंसर किया, कुछ लोगों ने ए आंसर किया, but the right answer is president, so B is the right answer. ठीक है, so Safi Naumani has answered it correctly. Who appoints the chief minister? It is the president, not the lieutenant governor. ठीक है. Second, because Delhi is a union territory. Second, अगर ये पूछा जाए who administers the oath, तब क्या आंसर करोगे? Who administers the oath of office for the chief minister of Delhi? तब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसर. ठीक है, ओथ दिलवाना अलग सी होता है ना. ओके, सो जस्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. हाँ, वो आर्टिकल है 239 कैपिटल ए है ना. Yes, 69th amendment, right? Okay, now the chief minister is actually Atishi Marlena Singh, or also known as Atishi Singh. ठीक है, so just have an idea about it. And she has earlier served as the minister also, है ना. So just have an idea. So currently we are having two women chief ministers. Currently, ठीक है. One is actually Atishi, another is Miss Mamata Banerjee from West Bengal. ठीक है. Now the next is now please tell me now. On the same day, like on Monday, there was an article which was talking about Nipah death confirmed in Mallapuram district. 150 contacts asked to isolate themselves. Now, Mallapuram district, this is not Mamallapuram, this is Mallapuram, which you will find it in Kerala. तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, उसमें नीपा वायरस आ गया और जिससे मतलब एक कंफर्म किया गया, ठीक है. And now there's a question for you. यहाँ पे क्वेश्चन भी आपने से मैं पूछ रहा हूँ. नीपा वायरस was first recognized in 1999 during the outbreak among pig farmers in where? सबसे पहले नीपा वायरस कहाँ देखा गया? और ये भी जूनोटिक डिजीज है जो कि जानवर से ह्यूमन में होती है ना. Spread through bats. Zoonotic means which can spread from animals to human. ठीक है. तो जो नीपा वायरस है जो कि पिग्स फार्मर्स में सबसे पहले फैला था, वो कहाँ था? मलेशिया में. यस, मलेशिया एंड इंडिया सिलीगुड़ी. यस, सफी नमानी, राइट. हाँ, तो सबसे पहले वो मलेशिया में फैला था. इधर आपको मिलेगा मलेशिया इधर. ओके, ठीक है. और ये केरला है. सो केरला में भी न्यूज में था. यू कैन सी इट हियर. ओके, asked to isolate themselves, इसका मतलब क्या? कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलती है. ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, नीपा वायरस इन्फेक्शन. ओके, फैटेलिटी रेट इज 40 to 75%. बहुत अच्छा खासा फैटेलिटी रेट है. मान लो कि 100 लोग को बीमारी हुई, इफ 100 people were infected with नीपा, so almost 40 to 75 can die. ये WHO के वेबसाइट दिखा रहे हैं. मतलब इसकी फैटेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट जो है बहुत ज्यादा है. एंड ये फ्रूट बैट्स के द्वारा फैलता है. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सबसे पहले 1999 में मलेशिया में आया था, ठीक है. एंड फिर बाद में 2001 में बांग्लादेश में. यू कैन सी एंड ऑल लाइक दैट. ओके, लेट्स. हाँ, हियर इज इंडिया, दिस इज मलेशिया. ये वाला और ये वाला हिस्सा मिला के, इस दोनों को मिला के मलेशिया कहते हैं. Now, let's move on to the next. There was another article, one nation, one election will be implemented in the current term of Modi government. तो ये काफी ज्यादा लास्ट वीक में न्यूज में था, ठीक है. वन नेशन वन इलेक्शन, उससे रिलेटेड एक कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, और व्हाट वी कॉल इट एज साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है. सो बेसिकली इट वाज इन द न्यूज एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टुमारो जो है 6 PM पे विल बी हैविंग अ क्लास ऑन दिस. कल 6 बजे वन नेशन वन इलेक्शन पर क्लास होगा. So do attend it. That would be very very beneficial. तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ currently because of course we need a separate topic. We need a good amount of time to explain this. ठीक है. Okay. Now the next is what do you mean by the term Brexit? Now why I'm discussing it? Because ये editorial आया था Monday को. Democratic engagement with a digital plugin. इसमें एकदम फर्स्ट पेज पे बात हुई थी वही ब्रेक्सिट की. सो दे वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स रिलेटेड विद ब्रेक्सिट एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट. ठीक है. यस तुइशा, यू आर राइट.
ब्रिटेन एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन को हम लोग ब्रेक्सिट कहते हैं। यस सैफी नौमानी, वेरी गुड। तो इस पर मैंने एक्चुअली एक आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो अबाउट यूरोपियन यूनियन, एंड इन दिस एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्रेक्सिट एज वेल। ओके, कौन से रूल सेक्शन के अंदर होता है, व्हाट आर द ट्रीटीज एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। सो ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सो यूट्यूब पे सर्च करना ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, यू विल गेट दिस वीडियो, ठीक है। So just have an idea. Let's move on further to the next one. Read this passage and answer it. और ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उठाया है, ठीक है। This passage I have taken from the Hindu newspaper of last week. I think Monday या Tuesday के न्यूज़पेपर में था ये, ठीक है। ऐसे ही पूछते हैं ना, they give option actually like A B C D, but I have not given option because I know कि option तो एग्जाम मिलेगा, but यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको I want to know कि whether you have read it or not. What is the right answer? Anyone? One person has said Hezbollah, another has said Houthis. Now, अब कैसे पहचाने कि किसकी बात हो रही है? A missile fired by Yemen, बस यहीं पे तो पता चलेगा, यमन से। Hezbollah is not based in Yemen. Houthis are based in Yemen. Iran-backed rebels landed in an open area in central Israel. Okay, आपने सुना होगा ये, that is why मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड पेज पर ये आया भी था। मिसाइल फाइड बाय हाउथीज लैंड इन ओपन एरिया इन सेंट्रल इसराइल। तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल था। तो देखो यहाँ पे इंडिया है, दिस इज यमन, तो यहाँ पर समवेयर हियर एक्चुअली कंट्रोलिंग हाउथीज, है ना। मान लो यहाँ पे हाउथीज है का रूल है, और दिस इज इजराइल, ठीक है। तो यहाँ से दे लॉन्च्ड इट एंड एक्चुअली ऐसे शायद ऐसे गया था, आई थिंक ऐसे गया था perhaps, okay, something like that. So they launched a missile which actually hit Israel, and this was I read somewhere that it was in fact a ballistic missile. तो ये न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस हैज बीन, हाउथीज हैव बीन वेरी मच इन द न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए। तो वही आपको कीवर्ड से पकड़ना है। तो यहाँ पे यमन लिखा है, बस यही से पकड़ा जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो यमन की जगह लेबनान लिखा होता है ना, देन यू शुड हैव आंसर्ड हिजबुल्लाह, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यमन लिखा है, और भी कुछ इशारों और कुछ, और इसके अलावा किसी से नहीं पकड़ पाते आप, ठीक है। ईरान बैक रेबल्स, तो ईरान बैक तो हो सकता है, आप हिजबुल्लाह का भी कह सकते थे, बट ये जो है ना, दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू इन फाइंडिंग द आंसर, है ना। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो एंड रीड द विकिपीडिया पेज ऑफ हाउथीज आल्सो, ठीक है। जैसे दे कैन आस्क कि अंसार अल्लाह इज एक्चुअली द नथिंग बट हाउथी मूवमेंट, ओके। Why I'm saying because जो लास्ट ईयर है, जैसे हमास पे दे आस्क क्वेश्चंस, और वो एकदम विकिपीडिया पेज से ही उठाया हुआ था, शुरू की 2 पैसेज से। एंड करेंटली हाउथीज एंड हिजबुल्लाह आर आल्सो इन द न्यूज़, सो गो एंड रीड हाउथीज एंड हिजबुल्लाह विकिपीडिया पेज, ये पूरा पढ़ो, ये पढ़ो, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अंडरलाइन करो, उसको देखो कि क्या चीज की बात हो रही है, ओके। जस्ट ऐसे सरफेस पे नहीं पढ़ो, थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ो, बिकॉज दीज आर इन द न्यूज़, हाउथीज एंड हिजबुल्लाह, ओके। सो गो एंड रीड इट। Now, the next is promotion of international peace and security is mentioned in dash. Now, in which article actually I was asking? Now, ये भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीक में भी, और इसमें भी डिस्कस करा रहा हूँ, बिकॉज उसके रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल हुआ था कि इंडिया शुड नॉट एक्सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू इजराइल। तो इस पर जो है, although the petition was rejected, Ashok Kumar Sharma and others versus Union of India case. So they filed a petition, but it was rejected and all. Hi. So yes, this is actually Article 51. Very good. Yes, Twisha and Safi, you both are right. Article 51. ठीक है। तो इसी की बात हो रही थी इस एडिटोरियल में, एंड दे हैड टॉक्ड अबाउट द आईसीजे's ओपिनियन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन ऑर्डरिंग प्रोविजन मेजर्स अगेंस्ट इजराइल
ओके आपने सुना होगा ऐसा कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेज इजराइल मस्ट प्रिवेंट जेनोसाइड इन गाजा. ओके तो ये सब न्यूज में था एंड दैट इज व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट इट कि इंडिया शुड नॉट बी एक्सपोर्टिंग अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन. इंडिया शुड नॉट बी एक्सपोर्टिंग weapons to Israel. Okay, so here is Article 51. So they talked about 51 में just promote international peace and security. फिर सी देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं foster respect for international law and treaty obligation. So they are actually talking about genocide convention. So the petition was filed by citing Article 51 Clause C. Okay, so this is what you should be knowing. Now genocide convention was signed in the year dash. बताइए कौन सा year? अच्छा आईसीजे मैंने यूनाइटेड नेशन पर एक वीडियो बनाया है ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन. ऐसे सर्च करना यूट्यूब पर ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन career launcher law and trends ऐसे सर्च करना. You will get a video where I have talked about ICJ, one of the principal organ of United Nation. मैंने उस पर वीडियो बनाया है ICJ, मतलब उसी में जिक्र किया है यूनाइटेड नेशन का जो वीडियो उसी में. ठीक है. So genocide convention was signed actually in 1951 I think. इफेक्टिव 51 से हुआ था, साइन 1948. ठीक है. 1948 में साइन हुआ एंड इफेक्टिव इन 1951. Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide or Genocide Convention that criminalize genocide obligates state parties to pursue enforcement of its prohibition. यानी कि जो इस पार्टीज के मेंबर्स हैं, है ना, 153 पार्टीज हैं, उन सबको इंश्योर करना चाहिए कि जेनोसाइड कन्वेंशन इन्फोर्स हो. ओके, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. इट वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड ऑन 9 दिसंबर 1948. अच्छा 9 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट हुआ. इसके नेक्स्ट डे एक और चीज आई थी 10 दिसंबर 1948 को. क्या आया था बताइए? जस्ट वन डे बिफोर अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जेनोसाइड कन्वेंशन वाज साइन. तो उसके नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, और इसी जगह पर हुआ था ये. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन द सेम सिटी नेक्स्ट डे. और आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेम यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. उसमें मैंने वीडियो बनाया भी है यूडीएचआर पर, और देखिएगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आता है. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. नाउ पॉश लॉ इज रिलेटेड विद व्हिच केस? मनिका गांधी केस, विशाखा केस, डीके बासु केस, शत्रुघ्न चौहान केस. पॉश लॉ इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में. हाँ, actually, yes, Tuisha, Safi, you both are right. Vishakha versus State of Rajasthan case या Vishakha guidelines भी कहते हैं. So B is the right answer to this question. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हेमा कमेटी रिपोर्ट पर, आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए. You will get this हेमा कमेटी report #MeToo in Kerala. So where we have discussed, I have talked about POSH law as well. Okay, so just have an idea. Now the next क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो 18 सितंबर को एक एडिटोरियल आया था कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी. तो एक्चुअली क्या एक लॉ बनाया गया बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल, व्हिच टॉक्स अबाउट एक्चुअली डेथ पेनल्टी. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक है. तो आरजे कार इंसिडेंट के बाद, हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद, दीस थिंग्स हैव बीन वेरी मच इन द न्यूज़ एंड ऑल. Okay. Okay. Then they have talked about Justice Verma Committee also. ये इस क्लास में मैंने Justice Verma Committee की बात की है. Then I discussed about #MeToo also इस क्लास में. ठीक है, ये वाली क्लास जरूर देखिएगा. और हेमा कमेटी न्यूज में था. That is why I have made a class on it. ठीक है. Now the next is Demchok and Depsang are found in Sikkim, Ladakh, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही मैंने उठाया हूं, लास्ट वीक के हेडलाइन में था. एनीवन? किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, कोई बता सकता है? यस, प्रीतम, तुषा, you both are right. B is the right answer to this question, है ना.
No progress in resolution of Demchok and Depsang friction points in 2 years. Okay. So there has been much hype over external affairs ministers as Jaishankar's comment that 75% of disengagement has been completed and all. तो ये सब न्यूज में था. तो इसमें जो है देपसोंग और देमचौक और देपसांग न्यूज में था. तो देखो देमचौक यहाँ पर है ना, और देपसांग यहाँ पर है. ठीक है. तो ये वाला ऐसे एलएसी, आप आई होप यू आर अवेयर, एलएसी कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो इसी के आसपास है ना. ठीक है. और एलएसी से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है ना, कि एलएसी की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ एलएसी है ना. कितना है बताइए, तो एग्जाम में सवाल आया था. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की टोटल लेंथ. यस 3488 किलोमीटर. यस साफी नोमानी, वेरी गुड. ओके. नाउ एक और आर्टिकल थी लास्ट वीक न्यूज़पेपर में, वॉकी टॉकी सोलर इक्विपमेंट एक्सप्लोड अ डे आफ्टर पेजर ब्लास्ट. ये आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन वॉकी टॉकी एंड पेजर ब्लास्ट एंड ऑल हैपनिंग इन लेबनन. लेबनन की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन? एनीवन? और लेबनन के वेस्ट में एक वाटर बॉडी, उसका नाम क्या है? वाटर बॉडी वेस्ट ऑफ लेबनन. So let me show in the map. Here is India. This one, let me zoom. तो ये वाला इजराइल है. This one, this is Lebanon. So Lebanon में this here is an organization based Hezbollah, which has been fighting against Israel and all. तो क्या हुआ कि इस लेबनन में पेजर होता है. पेजर पता नहीं इंडिया में तो यूज नहीं होता, I don't think so, but यहाँ they use it and I don't know, शायद यूज होता होगा. I'm not sure कि whether we use it in India or not. बट थोड़ा सा प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है पेजर. एंड वॉकी टॉकी तो आई थिंक ट्रेन वगैरह में यूज होता है. वॉकी टॉकी आई थिंक इज यूज्ड बाय द रेलवे ड्राइवर्स एंड ट्रेन्स इन इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसमें भी जो है पता नहीं कैसे, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे उसमें कुछ क्या लगा था कि ब्लास्ट हुआ कई जगह लेबनन में, एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी पीपल डाइड एंड एक्चुअली मेनी ऑफ देम गॉट इंजर्ड बैडली. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. तो इसमें बहुत सारे न्यूज आ रहे थे, बहुत सारे लोग, पीपल वेर पुटिंग कंजेक्चर्स दैट परहैप्स इट वाज डन बाय इजराइल और यूएस और समथिंग लाइक दैट. तो ये सब न्यूज आ रहा था. दीज वेर थिंग्स व्हिच वेर इन द न्यूज. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. और लेबनन के वेस्ट में ये वाटर बॉडी क्या क्या कहलाता है? यस मेडिटेरेनियन सी. यस प्रीतम एंड सैफी, वेरी गुड, यू आर राइट. मेडिटेरेनियन सी कहलाता है ये. ठीक है. हाँ, कैपिटल इज बैरूत. लेबनन कैपिटल बैरूत है. Now the next is पेज नंबर 6 में 19 सितंबर को थर्सडे को एक आर्टिकल थी, शेड द मायोपिया रीफोकस द रिलेवेंस ऑफ इंग्लिश. तो इसमें लोगों ने, द ऑथर ने, दे टॉक्ड अबाउट एक्चुअली फोकसिंग ऑन इंग्लिश एंड ऑल. खैर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये वो बहुत सारी चीज डिस्कस की थी. तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. दिस इज अ क्वेश्चन. देखो ये तो आपको पता होगा कि हिंदी इज एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच आर्टिकल? बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज? बताइए. दूसरा ये बताना है कि एक आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, है ना. हाँ, ये तो 343 है. Similarly, one article of the Indian Constitution talks about it is the duty of the center to promote the Hindi language. So 351 mentioned है वो. ठीक है. Duty of union to promote Hindi language. Okay. तो खैर ये बात होगी. अब यहाँ पर ये इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी की. Now, can you please tell me, during British era, a committee was set up, dash committee, which recommended to be the use of English to be the official language. And in fact, today we are actually talking and speaking, everything is in English because of this famous act, which was passed in dash year. कोई बता सकता है? Hunter committee is not actually correct. हंटर कमेटी भी एजुकेशन से रिलेटेड ठीक है, लेकिन मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूं जिसने इंग्लिश को रिकमेंड किया था कि इंग्लिश शुड बी यूज्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स.
चलो मैं हिंट देता हूं, विलियम बेंटिक किस जमाने में था? लॉर्ड विलियम बेंटिक सेट अप अ कमिटी, मैकॉलेज कमिटी, आपने नाम सुना होगा, या मैकॉलेज मिनट भी कहते हैं, एंड ही रिकमेंडेड व्हाट वी कॉल इट एज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उन्हीं के बाद बना था, उन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद 1835 में। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, मैंने देखा है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह में। ठीक है, सो दे टॉक्ड अबाउट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इनफैक्ट जो व्हेन वी आर टॉकिंग, अगर आपने देखोगा आज मोस्ट ऑफ द बुक्स, टेक्स्ट बुक्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग सबको इंग्लिश ही में पढ़ते हैं, है ना। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने में इसी लॉ का हाथ है, विच वाज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय मैकॉले कमिटी और मैकॉलेज मिनट। ठीक है, फिर एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था, कैन शेख हसीना भी एक्स्ट्राडिटेड। ये सब न्यूज आ रहा था कि एक्स्ट्राडिट करने के बाद, तो एक्स्ट्राडिट करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस? बिकॉज आपने पढ़ा होगा ये न्यूज कई बार, तो आपने गूगल पे सर्च किया होगा, अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है, जैसे मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, देयर इज अ पर्सन फ्रॉम इंडिया हु रैन टू, आई थिंक, इंग्लैंड। आपने नाम सुना होगा, विजय माल्या। तो उन पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि वो जो है बहुत सारा मतलब ही हैज नॉट पेड द लोन्स एंड ऑल, एंड देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल एलिगेशन अगेंस्ट हिम। तो उन पर बहुत सारे इल्जाम है कि उन्होंने कई सारा कर्जा नहीं दिया, उन पर और भी पैसे से रिलेटेड बहुत सारे इल्जाम है। सो केस नीड्स टू बी इनिशिएटेड एंड ऑल। अगर उनको वापस लीगली, जैसे इंडिया मान लीजिए इंग्लैंड से पूरी बातचीत कर ले, ठीक है, मतलब टॉक्स करने के बाद वहां के कोर्ट से परमिशन लेकर, इफ वी एक्चुअली ब्रिंग देम बैक, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रेडिशन। ठीक है, हाँ, मेकिंग समवन रिटर्न टू अ कंट्री, स्पेशली इफ देयर इज अ, इट्स रिलेटेड विद अ पर्सन हु हैज सम एलिगेशन अगेंस्ट हिम इन अ कोर्ट, स्पेशली अ क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, उनको वापस लाना, वैसे लोगों को लाना जो जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन लगे। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन। तो अब जैसे ये लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शी हैड लेफ्ट टू दिल्ली, तो अब लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन लगा, सो दे माइट बी ब्रिंगिंग इट बैक। खैर अभी तो न्यूज़ है, कंजेक्चर्स है, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज अ करेक्ट न्यूज़, मतलब दिस इज 100% इट विल कम और नॉट। बट चूंकि एक्सट्रेडिशन वगैरह न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है बांग्लादेश पीएम रेजिग्नेशन पर, है ना, शेख हसीना रिजाइंस, सो गो एंड वॉच इट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड। इसमें बांग्लादेश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब शेख हसीना रिजाइंस लॉ एंट्रेंस, ऐसे सर्च करना, शुरू ही में आपको ये वीडियो मिल जाएगा ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। एक और आर्टिकल थी लास्ट वीक, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली, ऑन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल्स ऑक्यूपेशन। तो इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एक होता है यस, सपोर्ट करना रेजोल्यूशन, एक नो, अपोज करना। एक होता है एब्सटेन, मतलब नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज, मतलब बीच में रहना, यानी कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे इस रेजोल्यूशन को, ना ही अपोज करेंगे। तो यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन क्या आया था? रेजोल्यूशन ये आया था कि इजराइल ने बहुत सारे एरिया को पैलेस्टीन में ऑक्यूपाई किया है, उसके अगेंस्ट। सो द रेजोल्यूशन वाज अबाउट दिस, that Israel has occupied a lot of territories and all in Palestine. So the India actually, UN called Israel to vacate Palestinian territories. Okay, so the resolution was that UN General Assembly was passing a resolution to call the Israel to vacate the territories it has actually captured. ठीक है, so that is what it is. So this resolution was talking about कि आप जो है उसको जमीन को खाली कीजिए, but India actually abstain, मतलब neither supported nor opposed it. Okay, that is what we should be knowing about it. Now India should increase court system capacity, reduces pending trial, says FATF. देखो, आपने FATF का नाम सुना होगा। What is FATF about? When it was established, कौन से ईयर में established हुआ, who established it, what is the purpose of it, where is its headquarters, ये सब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका काम होता है टू काउंटर टू कर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड इंक्रीज कोर्ट सिस्टम कैपेसिटी, यानी अदालत के को फास्ट इन करना होगा, मतलब मोर नंबर ऑफ जजेस शुड बी देयर, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए, रिड्यूस पेंडिंग ट्रायल्स, बहुत सारे ऐसे केसेस जो कई सालों से चला रहा है,
I hope you are aware. So the FATF has said that we need to actually, the India need to ensure fast track court system and reduce pending trial. हाँ, FATF का headquarter पेरिस में, very good, Safi Nomani, and established in the year 1989 by the G7 countries to fight against money laundering and terror financing. Okay, इनका FATF black list, grey list भी आता है, आपको पता होगा. So that is what you should be knowing. Now, फिर एक Saturday को we had discussed about it yesterday कि Bombay High Court strikes down IT amendment rules. तो we had discussed it कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसको अमेंड किया गया था, रूल्स बनाया गया था 2023 में. उस रूल्स में एक फैक्ट चेकिंग यूनिट एस्टैब्लिश की गई थी, है ना. बट दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय बॉम्बे हाई कोर्ट. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, फैक्ट चेकिंग यूनिट को. क्यों? बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट, पूरा लिख देता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें ना वेग है. वेग यानी क्लियरली डिफाइंड नहीं है जो रूल बनाया गया था. जैसे रूल में मतलब जैसे ये सब बात की थे ना कि फेक मतलब ये कि फैक्ट चेकिंग यूनिट इसलिए बनाया गया था कि अगर फेक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो तो उसको रोकने के लिए. और बट इसको डिफाइन नहीं किया गया था क्लियरली कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ डू यू डिफाइन. तो वेग था, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया. दिस पेटिशन वाज फाइल्ड बाय कॉमेडियन मिस्टर कुणाल कामरा. ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए. और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो आईटी रूल्स है वो पैरोडी और सटायर के लिए स्पेस नहीं छोड़ता है. सो दैट इज व्हाई वी आर स्ट्राइकिंग इट डाउन. 2:1 है ना. द ऑर्डर वाज लाइक दिस. खैर, तो आगे चलते. फिर तिरुपति लड्डू के बारे में हम लोगों ने yesterday we had discussed it. तिरुपति ना, so there's a temple called as Lord Venkateshwar Temple. You will find it in Tirupati. ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आपको मिलेगा तिरुपति. तिरुपति लड्डू इज ऑल्सो वेरी फेमस. इनफैक्ट उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है. तो there's a temple, ये आंध्र प्रदेश हो गया ना, यहाँ पे तिरुपति. लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल मैंने बताया भी था, which is dedicated to Lord Venkateshwar, a form of Vishnu. तो इन्हीं में मतलब इसी से रिलेटेड देखो, there's a board, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम. This is I think a board or an organization which runs this temple. तो एलिगेशन ये लगा था कि यहाँ पर जो इसमें जो लड्डू वगैरह मिलते हैं, इसमें कुछ एनिमल के फैट वगैरह पाए गए. सो एनिमल फैट एंड मेनी अदर अनवांटेड थिंग्स वेयर एक्चुअली फाउंड. तो फिर गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगा इससे रिलेटेड. द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अ रिपोर्ट फॉर इट. ओके, तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट FSSAI, है ना. हम लोगों ने बताया भी था FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंश्योर करती है फूड सेफ्टी, है ना. और ये इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. वी हैड डिस्कस्ड इट. एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर का नाम क्या है? सो यू शुड बी नोइंग इट. इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? मिस्टर JP नड्डा, है ना. सो ही हैज ऑर्डर्ड फॉर एन इंक्वायरी, की इंक्वायरी की जाए, फाइंड आउट किया जाए, है ना, तिरुपति लड्डू के बारे में, है ना. कि फुल रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट मांगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द केस एंड ऑल. Who supplied he to Balaji temple and why did Nandini opt out? खैर, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, just have an idea. Now, फिर ये वाली बात we had discussed it yesterday that a high court judge in Karnataka had said something regarding these things, and he had said something in front of a female judge which he should not have spoken. तो उसके बाद Supreme Court CJI was not very happy. In fact, on 21st September the Supreme Court will hear the matter. Okay, तो वो मैटर इनफैक्ट उन्होंने बाद में रिग्रेट भी दिया. आई रेड अबाउट हिम दैट ही सेड दैट यस आई शुड नॉट हैव स्पोकन. सो ही एक्सप्रेस्ड द रिग्रेट ऑन व्हाट ही हैड सेड. खैर, सो दिस वाज एक्चुअली इन द न्यूज़. नाउ इसरो विल टेक ऑल प्रिकॉशन बिफोर मैन्ड गगनयान मिशन. ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड इट. गगनयान इज विल बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन इनटू स्पेस, है ना. वी विल बी सेंडिंग ह्यूमंस टू मून very soon, maybe in the next 1, 2 or 3 years. ठीक है, तो गगनयान मिशन जाएगा. So that is what you should be knowing it. Last year we had sent Chandrayaan 3 जो कि लैंड हुआ था, है ना. Quite very much in the news. ठीक है, so this you should be knowing it.
Okay. Now, then we talked about reflections on America's customary face. So Mr. Shashi Tharoor's article talking about the election, the US presidential election. तो इस पे तो मैं सोच रहा हूँ I'll prepare a separate video. Maybe next week में शायद आएगा, इस week ना आए. So US presidential election पे, because I think that's important. You should be knowing it. है ना? तो ये election वगैरह हो रहा है ना? So I'll discuss it. Then Indus Water Treaty पे भी I have told you that it needs a separate video and all. So Indus Water Treaty, ठीक है. 1960 में it was signed between India and Pakistan. So India is trying to renegotiate. दोबारा negotiate करने की बात हो रही है ना. So that is what we'll be having. तो अगर जिसने भी channel subscribe नहीं किया, please subscribe to our channel, because we'll be coming up with a lot of content in the next week and next to next week. ठीक है, so do subscribe to it. That would be very very beneficial. Yesterday श्रीलंका में election हुआ कल. ये तीन मेन कैंडिडेट्स थे, रनिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा एंड अनुरा कुमारा देस्यानेक. ठीक है, तो ये तीनों का आप नाम याद देख लीजिएगा. ये अभी करंट प्रेसिडेंट है. अब देखते हैं कि इलेक्शन के बाद कौन प्रेसिडेंट बनते हैं. सो लेट्स सी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो. ठीक है, श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड ऑल. करंट प्रेसिडेंट इज रनिल विक्रमसिंघे एंड करंट प्राइम मिनिस्टर जो है दिनेश गुणावर्धना है ना. गुणावर्धना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. फिर यूएस फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% से रेपो रेट अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया. सो ये काफी ज्यादा न्यूज में था. नॉन यूएस फेडरल रिजर्व इज लाइक इंडियाज आरबीआई. जैसे इंडिया में आरबीआई होता है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व होता है, उनका सेंट्रल बैंक है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. देन एक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. हुआ ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन भेजी थी कुछ हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त पूरा एक्शन नहीं लिया था. तो आज मैंने देखा कि रिपोर्ट आई कि हाँ 8 चीफ जस्टिस नए बनाए जाएंगे. गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया फाइल. सो दे विल टेक द ओथ. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था डिटेल, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने खास किया ना 5 जजेस कॉलेजियम की, व्हाई यू आर एक्चुअली, वेयर इज द मैटर. ठीक है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि अप्रूव क्यों नहीं किया. So they asked to Ministry of Law and Justice. अच्छा, कौन मिनिस्टर कौन है अभी? Who is the Law Minister of India? एक वीडियो है ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्लीज जरूर देख लीजिएगा. और इस पर नया सिंबल भी आया था ना, नया न्यू फ्लैग रिसेंटली. सो दैट इज व्हाई यू शुड नो ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. है ना, करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट सर्च कीजिएगा. Who is the Law Minister of India? चलो, दिस इज अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट. ठीक है, ये मैंने हिजबुल्लाह के बारे में बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. सो कि इसको पढ़ लीजिएगा आफ्टर द क्लास इज ओवर. ठीक है, हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल. यस, सैफी नोमानी, राइट. अर्जुन राम मेघवाल एंड ही इज फ्रॉम बीकानेर, एमपी फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान. ओके, सो एक और क्लास होगी आज 8 बजे शाम में, टुडे एट 8 PM. दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम लोग स्टैटिक जीके रिवाइज कराते हैं. ठीक है, रिवाइज और इससे और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बनाए हैं, प्लेलिस्ट है. बट आज 8 बजे ज्वाइन करना, विल डिस्कस स्टैटिक जीके रिवीजन. तो उसमें बहुत सारी चीज कवर हो जाएगी. जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बाकी एग्जाम के लिए, स्लैट के लिए, एलेट के लिए हमको स्टैटिक जीके बता दीजिए, या और एग्जाम्स के लिए. सो गो वॉच इट एट 8 PM टुडे. आज 8 बजे शाम में मुलाकात होगी. वी विल डिस्कस द स्टैटिक जीके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. Thanks for watching. Have a nice day.